Good morning, children. Welcome to your biology class. Dear students, so far we have completed plant tissue. So today we are going to start with animal tissue. Okay, different type of tissues that are present in our body. So let's see different tissues in our body. So in animals there are four different type of tissues. Number 1 epithelial tissue, number 2 connective tissue, number 3 muscular tissue, number 4 nervous tissue. टिश्यू चैप्टर बहुत इजी है बेटा. एनिमल टिश्यू तो सबसे इजी है. एनिमल टिश्यू को लर्न करने का सबसे अच्छा मेथड है कि आप ये देखिए कि आपके बॉडी पार्ट्स में कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट हैं. सो एनिमल बॉडी में and if we talk about human body, so there are four different type of tissues: epithelial, connective, muscular and nervous. So we will study these tissue one by one. So today we are going to start with epithelial tissues. So animal tissue is divided into four parts: epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue and nervous tissue. This epithelial tissue is divided into two parts: simple epithelium and stratified epithelium. Simple epithelium consists of different shape of cells, and stratified epithelium is further divided based on the elasticity of the cells. Muscular tissue, which help us our body to move, is divided into three parts: striated muscle, smooth muscle and cardiac muscle. The most abundant tissue present in our body is connective tissue. हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा टिश्यू जो प्रेजेंट है वो कनेक्टिव टिश्यू है. और एज द नेम सजेस्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? टू कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. So this connective tissue is divided into connective tissue proper, skeletal tissue, fluid connective tissue, and the last tissue present in our body is nervous tissue. So today we are going to start with epithelial tissue. Epithelial tissue is divided into two parts: simple epithelium and stratified epithelium. Simple epithelium is made up of single layer of cells. Stratified epithelium is made up of different layer of cells. सिंपल एपिथीलियम में सेल्स की एक सिंगल लेयर है और स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम में बेटा देयर आर डिफरेंट लेयर ऑफ सेल्स. सेल की बहुत सारी लेयर्स है. This epithelium tissue, based on the number of layers of cell, is divided into two parts: simple and compound epithelium. Simple epithelium made up of single layer of cell. Compound epithelium is made up of different type of cell. Now this simple epithelium, on the basis of cell shape, कि सेल की शेप कैसी है, एपिथेलियल सेल की शेप कैसी है, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है: स्क्वैमिश, cuboidal, columnar and pseudo stratified. ओके. कंपाउंड एपिथेलियम को डिवाइड किया गया है बेटा स्ट्रेटिफाइड, ट्रांजिशनल, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमिश, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, केरेटिनाइज्ड, नॉन केरेटिनाइज्ड. यहाँ पे ये जो डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम ऑफ सिंपल स्क्वैमिश एपिथेलियम. ओके. So simple squamous epithelium or simple epithelium cells. First we talk about simple epithelial cells. Next we will study about squamous epithelial cell. So simple epithelial tissue is made up of single layer of identical cells. So main function of epithelial tissue is absorption or secretion. Okay. Epithelial tissue, this is the covering tissue in our body जो आपकी body को externally और internally cover कर रहा है. Okay. So you can see it is made up of single layer of cell. So this is the diagram of epithelium cells. So you can see cuboidal epithelium cells. Okay, these cells are cube in shape. You can see this general diagram of simple squamous tissue. ये simple squamous tissue के cells का diagram है. तो जैसे आपके घर पे टाइल्स अरेंज है फ्लोर के ऊपर, इनका अरेंजमेंट भी बिल्कुल ऐसे है. जैसे टाइल्स के बीच में स्पेस नहीं है, इन सेल्स के बीच में भी स्पेस नहीं है. दे ऑल्सो लैक इंटरसेल्युलर स्पेस.
So this is the nucleus of simple squamous tissue. Okay, nucleus is surrounded by a fluid substance known as cytoplasm, and this is the cement substance. What is the role of cement substance? Cement substance का रोल क्या है यहाँ पे? यहाँ पे ये एक केमिकल सब्सटेंस है जो दो सेल्स को आपस में ज्वाइन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है. ये सीमेंट नहीं है बेटा, लेकिन सीमेंट जैसा एक केमिकल सब्सटेंस है. तो जैसे सीमेंट का फंक्शन क्या होता है? ब्रिक्स को आपस में कनेक्ट करना, ज्वाइन करना. तो यहाँ पे ये जो केमिकल सब्सटेंस है ये दो सेल्स को कनेक्ट कर रहा है. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल लेयर है सेल्स की. सो ये सेल्स के बीच में सीमेंट सब्सटेंस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया. एपिथेलियल सेल्स के नीचे क्या प्रेजेंट है? बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे देखिए कोई भी आपसे ये पूछ सकता है कि एपिथेलियम सेल्स और अंडरलाइंग टिश्यू को सेपरेट कौन करता है? एपिथेलियल सेल्स के बीच में और इस एपिथेलियल सेल्स के नीचे जो भी आपका टिश्यू प्रेजेंट होगा उन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, क्या उन दोनों को सेपरेट करता है? तो आंसर क्या होगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन. सो एपिथेलियल टिश्यू इज द आउटर कवरिंग ऑफ योर बॉडी. आपकी बॉडी पे ये जो स्किन है इट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. आपके बॉडी को इंटरनली और एक्सटर्नली कौन कवर करता है बेटा? एपिथेलियल टिश्यू. सो इट्स कवर योर बॉडी इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली. तो फाउंड on outer covering, internal and outer covering of the body, body lining, cavities. आपकी बॉडी में जहाँ कहीं पे भी स्पेस है, जितनी भी ट्यूब्स हैं आपकी डाइजेस्टिव जो ट्यूब है, इफ़ यू टॉक अबाउट योर फूड पाइप, विंड पाइप, आपकी जो यूरिनरी यहाँ पे किडनी ट्यूब्यूल्स हो गए या यूरेटर हो गए जहाँ से यूरिन पास हो रहा है, हर जगह बॉडी के हर एक ट्यूब में. इफ़ यू टॉक अबाउट योर ब्लड वेसल्स, है ना, ब्लड वेसल भी एक ट्यूब है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है. सो इंटरनली और एक्सटर्नली आपकी पूरी बॉडी को कवर कर रहा है. आपकी बॉडी के हर एक कवरिंग, हर एक ऑर्गन के ऊपर जो आउटर कवरिंग है वो किसकी है? एपिथेलियल टिश्यू की है. ओके, सो आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT. गैस्ट्रो वर्ड किसके लिए यूज़ होता है? स्टमक के लिए. इंटेस्टाइन आपको पता है ना, जहाँ से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पे आपका फूड डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो रहा है. तो आपका जो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, वहाँ पे भी आपका एपिथेलियल टिश्यू है. यूरिनरी ट्रैक्ट जहाँ से आपका यूरिन पास हो रहा है जिस ट्यूब के थ्रू. ब्लड वेसल्स जिसमें आपका ब्लड फ्लो कर रहा है. heart chambers, your heart is 4 chamber, 2 upper chamber and 2 lower chambers in the uterus. Uterus is only present in फीमेल्स. यूट्रस सिर्फ फीमेल में प्रेजेंट होता है बेटा, मेल में नहीं होता. यूट्रस ही वो जगह है जहाँ पे एक फीटस अपने मदर की बॉडी में रहता है. स्टमक में नहीं रहता. बेबी जो है वो कहाँ रहता है? फीटस कहाँ रहता है? यूट्रस के अंदर अटैच रहता है मदर की बॉडी से. ओके, सो इंटरनली और एक्सटर्नली आपकी पूरी बॉडी को एंटायरली कौन कवर कर रहा है? एपिथेलियल टिश्यू. योर स्किन इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. आपकी बॉडी में जो भी ग्लैंड्स है जो सिक्रीशन का काम करते हैं, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. ओके, सो एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच फॉर्म मेम्ब्रेन. एपिथेलियल टिश्यू और अंडरलाइंग टिश्यू को सेपरेट कौन कर रहा है? यू हैव जस्ट सीन इन द डायग्राम बेसमेंट मेम्ब्रेन. सो द मेम्ब्रेन कवर्स द बॉडी सरफेस एंड ग्लैंड्स. आपके बॉडी के हर एक सरफेस, ग्लैंड्स पे, ऑर्गन्स पे एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू? टू कवर योर बॉडी इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, एंड इट इज़ द प्रोटेक्टिव टिश्यू जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. ओके, सो एपिथेलियम कवर मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज़ विद इन द बॉडी. आपकी पूरी बॉडी को एंटायरली कवर कर रहा है. आपकी बॉडी में जो भी कैविटीज़ है, जहाँ कहीं पे स्पेस है, एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है. इट फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट. आपके बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, है ना, और उन ऑर्गन्स को सेपरेट कौन कर रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं. उन ऑर्गन्स को सेपरेट भी एपिथेलियल टिश्यू कर रहा है. आपकी स्किन में, आपकी माउथ की लाइनिंग में, आपके ब्लड वेसल्स में, आपकी एलोविलाई आर द एयर सैक विच आर प्रेजेंट इन आवर लंग्स. आपके लंग्स में छोटे छोटे एयर सैक है. जैसे होली पे आप छोटे छोटे बैलून लेके आते हो ना और उनको पानी से भरते हो, तो ऐसे ही हमारी लंग्स के अंदर भी एयर सैक है एंड वी कॉल देम एज एल्वियोलाई. वहाँ पे भी आपका एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट है.
किडनी ट्यूब्यूल्स, आपके किडनी से अटैच जितने भी ट्यूब्स हैं जहाँ से आपका ब्लड आ रहा है, इम्प्योर ब्लड आ रहा है, प्योर ब्लड जा रहा है, और यूरिन जहाँ से ट्रेवल करता है. Okay, so the epithelium tissue are tightly packed and form a continuous sheet. Cells do not have intercellular space. Cells के बीच में intercellular space नहीं है. Okay, so they have a small amount of cementing material. दो cells को connect कौन कर रहा है? Cementing material connect कर रहा है, और tightly packing है, इसलिए intercellular space नहीं है. So there are different type of epithelial tissue. ये देखिए, ये simple squamous है, सिंपल क्यूबॉइडल, नेम सजेस्ट, सेल की शेप कैसी है? क्यूबॉइडल. सिंपल कॉलमनर सेल्स, इसमें टॉल होते हैं, पिलर लाइक, लंबे लंबे सेल्स है. देखिए स्ट्रेटिफाइड में देखिए आप, डिफरेंट लेयर्स आ गई. स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमिश में भी डिफरेंट लेयर्स आ गई, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल में भी आ गई. सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर में देखिए आप, ट्रांजिशनल में देखिए, इन सब के फंक्शंस आप अभी पढ़ेंगे. सो स्क्वेमिश एपिथेलियम, दिस एपिथेलियम इज ऑल्सो नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम एंड टेसिलेटेड एपिथेलियम. ऐसा क्यों कहते हैं इनको? बिकॉज इनका अरेंजमेंट कैसा है? टाइल्स ऑन द फ्लोर. जैसे आपके फ्लोर के ऊपर टाइल्स अरेंज है, बिल्कुल ऐसे ही इन सेल्स का अरेंजमेंट है. आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा, टाइल्स लगी, आपके घर पे भी देखा होगा. सो इसलिए इसे टेसिलेटेड और पेवमेंट एपिथेलियम कहा जाता है. सो द सेल्स ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम आर थिन एंड फ्लैट, और ये एक डेलिकेट लाइनिंग बनाते हैं. सो ये सिंपल स्क्वेमिश एपिथेलियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? ईसोफेगस, ईसोफेगस इज योर फूड पाइप, माउथ में. ओके, आपकी ब्लड वेसल्स में. सो ऑल दीज आर कवर्ड विद स्क्वेमिश एपिथेलियम. सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक टिश्यू की आपसे लोकेशन पूछी जा सकती है. ईसोफेगस इज योर फूड पाइप, आपके फूड पाइप में स्क्वेमिश एपिथेलियम है. देन योर माउथ लाइनिंग, आपके माउथ की जो लाइनिंग है वहाँ पे स्क्वेमिश एपिथेलियम है. आपके ब्लड वेसल्स में स्क्वेमिश एपिथेलियम है. क्यूबॉइडल एपिथेलियम, नेम सजेस्ट कर रहा है, सेल्स की शेप कैसी है? क्यूब जैसी, इसलिए इनका क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहा जाता है. ओके, सो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मेन फंक्शन है सिक्रीशन. तो इसको लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपकी बॉडी में वहाँ प्रेजेंट होगा बेटा जहाँ कहीं पे सिक्रीशन होगी. ओके, तो सिक्रीशन देखिए, सिक्रीशन कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ पे केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट होगा? किडनी ट्यूब्यूल्स में सिक्रीशन होता है आपके बॉडी में वाटर और सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए. सलाइवरी ग्लैंड, आप अपने फेवरेट फूड की स्मेल आती है आपको, उसके बारे में बात करते हैं, उसकी इमेज देखते हैं, या वो आपके सामने आता है, तो मुंह में जो वाटर सिक्रीट होता है उसको सलाइवा कहते हैं. तो सलाइवा कौन सिक्रीट कर रहा है? सलाइवरी ग्लैंड. सो यहाँ पे भी आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, तो आपके जो ग्लैंड्स हैं जहाँ सिक्रीशन हो रहा है वहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा. ओके, क्यूबॉइडल एपिथेलियम समटाइम्स गेट मॉडिफाइड. क्यूबॉइडल एपिथेलियम कई बार मॉडिफाइड हो जाते हैं एंड दे फॉर्म ग्लैंड सेल्स. तो ये ग्लैंड्स दो तरीके के होते हैं हमारी बॉडी में, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन, इनसाइड, एंडो मीन्स इनसाइड. सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में देते हैं और वो हमेशा हार्मोन सिक्रीट करते हैं. एक्सोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रीशन कहाँ देते हैं बेटा? एक्सोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रीशन देते हैं डक्ट के अंदर. ओके, सो दे आर डक्टाइल ग्लैंड, और वो क्या सिक्रीट करते हैं? दे सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम. वो हमेशा डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेंगे. एंडोक्राइन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एक्सोक्राइन डाइजेस्टिव एंजाइम. ओके, सो जब भी आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम सिक्रीशन में स्पेशलाइज्ड हो जाता है, इट फॉर्म ग्लैंडुलर एपिथेलियम. नेक्स्ट इज कॉलमनर एपिथेलियम. कॉलमनर एपिथेलियम के सेल्स कैसे थे? टॉल पिलर लाइक सेल्स थे. ओके, सो कॉलमनर एपिथेलियम का मेन फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन. तो आपके बॉडी के जिस पार्ट में भी एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा? कॉलमनर एपिथेलियम. आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कॉलमनर एपिथेलियम है. क्यों है वहाँ पे? क्योंकि कॉलमनर एपिथेलियम कई बार मॉडिफाई हो जाता है सीलिएटेड एपिथेलियम में. जब भी कॉलमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, वी कॉल देम एज सीलिया. अब वहाँ पे सीलिया प्रेजेंट है तो इसको हम कह देते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम. सीलिएटेड एपिथेलियम का फंक्शन क्या होता है? मूवमेंट में. किसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं? म्यूकस को मूवमेंट में हेल्प करते हैं, वाटर के मूवमेंट में हेल्प करते हैं.
ओके। तो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे म्यूकस की लाइनिंग होती है माइक्रोब्स को ट्रैप करने के लिए, है ना। जो हॉट एयर है आपकी, जो आप ब्रीद इन कर रहे हैं, उससे सेल्स डैमेज ना हो जाएं, तो उसके लिए भी म्यूकस की लाइनिंग प्रेजेंट होती है ना बेटा। सो म्यूकस के मूवमेंट में कौन हेल्प कर रहा है? सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम कहाँ से आ गया? कॉलमनर एपिथेलियम से। कॉलमनर एपिथेलियम जब मॉडिफाई हो गया, उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो गए, वी कॉल इट एज सीलिएटेड एपिथेलियम। सो द बीटिंग मूवमेंट ऑफ सीलिया, सीलिया मूव करती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, एंड द बीटिंग मूवमेंट ऑफ सीलिया हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ म्यूकस। Stratified squamous epithelium. So the cells of stratified epithelium पहले ही आपको बताया था मल्टीपल लेयर्स में अरेंज होते हैं ना। देखो तो यहाँ पे कितनी सारी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है सेल्स की। सो दे आर प्रेजेंट इन मैनी लेयर्स। सो मेन फंक्शन क्या होगा? आपकी बॉडी ऑर्गन्स को वियर एंड टीयर से, डैमेज से बचाने के लिए। ओके इनका ये जो पैटर्न है अरेंजमेंट का, इसी पैटर्न की वजह से इन्हें नाम मिला है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमश। योर स्किन इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमश। आपकी स्किन कौन से एपिथेलियम टिश्यू से बनी है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमश एपिथेलियल टिश्यू से। ओके सो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल्स, ओके, ऑफ वेरियस शेप. सो कंटिन्यूस सेल डिविजन टेक्स प्लेस इन लोअर लेयर्स. तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से बेटा क्या होगा? आपकी देखो स्किन जो है वो डैमेज भी होती रहती है ना। तो अगर वो डैमेज हो गई तो जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। तो जो लोअर लेयर्स है वो कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं, ताकि जो डेड सेल्स हो गए हैं उनको रिप्लेस करती जाए, जो भी सेल्स आपके वियर टीयर से डैमेज हो गए हैं उनको रिप्लेस करती जाए। ओके तो सेल डिवीजन होती जा रही है यहाँ पे। सो बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट है यहाँ पे। सो मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स। अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स, जो भी स्ट्रक्चर इसके नीचे प्रेजेंट है, उनको किसी भी तरीके के मैकेनिकल वियर और टीयर से प्रोटेक्ट करता है। ओके सीलिएटेड एपिथेलियम हमने देखा था। सीलिएटेड एपिथेलियम क्या है? कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स के ऊपर जब भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, वी कॉल इट एज सीलिएटेड एपिथेलियम. Ciliated epithelium perform the function of movement of particles or fluid, for example mucus, water. Okay, so it is present in the trachea. What is trachea? Your windpipe. Now your windpipe is divided into bronchi. जैसे ही आपकी विंड पाइप लंग्स के पास पहुंचती है, वो लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। तो जो ब्रोंकियल ट्यूब्स हो गई, वहाँ पे भी सीलिएटेड एपिथेलियम है, क्योंकि जब आप ब्रीद कर रहे हैं तो एयर के साथ माइक्रोब्स एंटर कर जाते हैं और उनको प्रिवेंट करने के लिए नेजल कैविटी में भी प्रेजेंट है. ओके सो दिस इज द डायग्राम ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम. ये कॉलमनर सेल्स हैं और इनके ऊपर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है. ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या है बेटा? सीलिया. सो दिस इज द ग्लैंडुलर एपिथेलियम. क्यूबॉइडल सेल्स जब मॉडिफाई हो जाते हैं सिक्रीशन में, दे फॉर्म ग्लैंडुलर एपिथेलियम. तो आप ये देखिए, ये सेल्स मॉडिफाई हो गए एंड दे हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंस. ओके स्क्वैमश एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट है? स्क्वैमश एपिथेलियम आपकी माउथ लाइनिंग में, आपकी ब्लड वेसल में, एलोविलाई, एयर सैक ऑफ द लेग, इसोफेगस, फूड पाइप. तो ये क्या फंक्शन है एपिथेलियम टिश्यू का? ये फंक्शन तो सभी में आपको कॉमन मिलेगा, चाहे वो किसी भी टाइप का हो. प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम इंजरी जर्म्स. सो ये देखिए यहाँ पे आपकी एलोविलाई ऑफ लंग्स में प्रेजेंट है, थिन होता है, इसीलिए गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करता है. ओके सेकेंड इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम. क्यूबॉइडल एपिथेलियम सिक्रीशन. कॉलमनर एपिथेलियम मेन फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन. तो सिक्रीशन किडनी ट्यूब्यूल्स में होगा, आयंस का सिक्रीशन होता है बॉडी में वाटर और सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए. सलाइवरी ग्लैंड या जो भी ग्लैंड है आपका, पेनक्रियाज वगैरह हो जाएगा, उन सब में क्यूबॉइडल एपिथेलियम आ जाएगा. जिसके पीछे ग्लैंड लग जाएगा वहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज ऑल्सो करेक्ट एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज ऑल्सो करेक्ट. ओके सो क्यूबॉइडल एपिथेलियम में न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में प्रेजेंट है. कॉलमनर एपिथेलियम में आप देखिए न्यूक्लियस जो है वो बेस में नीचे की तरफ प्रेजेंट है. सो क्यूबॉइडल एपिथेलियम किडनी ट्यूब्यूल्स में, सलाइवरी ग्लैंड्स में है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मेन फंक्शन सिक्रीशन है. ओके
तो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करेगा, किडनी ट्यूब्यूल्स में आयंस का सिक्रीशन होगा। कॉलमनर एपिथेलियम टॉल पिलर लाइक सेल्स है, मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन। तो आपके बॉडी के ऐसे पार्ट जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा वहाँ पे कॉलमनर एपिथेलियम है। और कॉलमनर एपिथेलियम मॉडिफाई होके क्या बना लेता है बेटा, सीलिएटेड एपिथेलियम। ओके, सो सीलिएटेड एपिथेलियम आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होगा, जहाँ पे म्यूकस के मूवमेंट में सीलिया हेल्प करेगी। और आपके कॉलमनर एपिथेलियम है इंटेस्टाइन में होगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, आपकी इंटेस्टाइन में हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। ओके, तो ये देखिए फिर से लोकेशन है, आपको बार बार मैं इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ सो दैट आपके यहीं पे लर्न हो जाए। सिंपल स्क्वेमश, एयर सैक ऑफ लंग्स, लाइनिंग ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल। वैसे तो आपके पूरे के पूरे हार्ट में कार्डियक टिश्यू होता है। ओके, सो गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करेगा डिफ्यूजन के थ्रू, प्रोटेक्शन तो देगा ही। ओके, क्यूबॉइडल एपिथेलियम सिक्रीशन, तो सलाइवरी ग्लैंड्स, किडनी ट्यूब्यूल्स, इन सब में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। कॉलमनर एपिथेलियम सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ होगा, ब्रोंकाई, आपके विंड पाइप का फर्दर डिवाइड हो जाती है तो वो ब्रोंकाई बनाती है। यूट्राइन ट्यूब्स, यूट्रस किस में होता है, फीमेल में, तो यूट्रस की जो ट्यूब्स हैं वहाँ पे, ओके, यूट्रस में, स्मूथ मसल्स में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, ब्लैडर में। सो मेन फंक्शन है कॉलमनर का एब्जॉर्प्शन। सीलिएटेड एपिथेलियम जो है वो मूवमेंट में हेल्प करती है, तो आपके विंड पाइप में, ट्रैकिया में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, जो म्यूकस के मूवमेंट में हेल्प करती है। अच्छा, म्यूकस क्या होता है, बच्चे कई बार पूछते हैं। तो जैसे आप एलोवेरा जेल, एलोवेरा को जब भी कट करते हैं ओरिजिनल एलोवेरा, तो आपने देखा होगा कि ऐसा वाइट ट्रांसपेरेंट जेली जैसा सब्सटेंस होता है, तो लगभग वैसा ही म्यूकस हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमश एपिथेलियम इसोफेगस में, माउथ में, वेजाइना, वेजाइना इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, डैमेज से प्रोटेक्ट कर रहा है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, देखिए यहाँ पे दो लेयर्स आ गई, स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड ब्रेस्ट को कहा जाता है, जो फीमेल में मिल्क प्रोड्यूस करती हैं और यंग वन को फीड करने के काम आती है, प्रोटेक्ट करते हैं। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम यूरेथ्रा, जहाँ से यूरिन पास होता है हमारी बॉडी से। ओके, सिक्रीशन और प्रोटेक्शन इसका मेन फंक्शन है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम ब्लैडर में, यूरेथ्रा में, यूरेटर्स। यूरेटर्स आर द ट्यूब्स ऑफ द किडनीज विच कैरी द यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। ओके, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम की खास बात ये होती है बेटा, ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है, स्ट्रेच हो सकता है। तो आपने देखा होगा कई बार आप यूरिन को स्टोर कर सकते हैं, है ना। आप यूरिन को ज़्यादा स्टोर क्यों कर पाते हो अपनी बॉडी में, अगर आप मान लीजिए कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप यूरिनेशन के लिए नहीं जा सकते, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो एक्सपेंड हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। तो वहाँ पे कौन सा एपिथेलियम है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जो उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करवा रहा है। ओके, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, सेवरल लेयर ऑफ cells, they are made up of multiple layer of cells, so they help in continuous cell division। जो lower cells है वो continuously divide करते हैं। we have discussed transitional epithelium, जो elasticity देता है बेटा। okay, it is very elastic, डिवाइड भी होते रहते हैं ये सेल्स कॉन्टीन्यूसली, तो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ब्लैडर में यही है। नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम, ये मॉइस्ट सरफेस को मॉइस्ट सरफेस को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये आप दो पढ़ेंगे, नॉन कैरेटिनाइज्ड एंड कैरेटिनाइज्ड। ओके, सो ये मॉइस्ट सरफेस पे होता है, नॉन कैरेटिनाइज्ड, तो कैरेटिनाइज्ड कौन से सरफेस पे होगा, ड्राई सरफेस पे होगा। सो इट इज़ सब्जेक्टेड टू वियर एंड टीयर, डैमेज हो, ठीक है, डैमेज को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो भी सेल्स हैं उनको ड्राई होने से बचा रहा है। तो आपकी जो कंजेक्टिवा है आई में, लाइनिंग ऑफ माउथ, वेजाइना, इन सब पे नॉन कैरेटिनाइज्ड है। कैरेटिनाइज्ड स्क्वेमश एपिथेलियम आपके बॉडी के ड्राई सरफेस पे है, डेड एपिथेलियल सेल्स हैं। आपकी स्किन, आपकी हेयर, आपके नील्स, ये किससे बने हुए हैं, कैरेटिन प्रोटीन से। किससे बने हुए हैं बेटा, कैरेटिन प्रोटीन से। ओके, तो यहाँ पे आ सकता है स्किन में, हेयर में, नेल्स में कौन सा एपिथेलियम है, कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। सो देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज़ की लोकेशन दी हुई है हमारी बॉडी में। सिंपल स्क्वेमश ब्लड वेसल्स में है, एल्वेलाई में है, गैशियस एक्सचेंज में, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट के एक्सचेंज में हेल्प करता है। ओके,
सिंपल क्यूबॉइडल जहाँ पे सिक्रीशन होगा, किडनी ट्यूब्यूल, सलाइवरी ग्लैंड, सिंपल कॉलमनर जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, और जहाँ पे भी मूवमेंट होगा सीलिएटेड एपिथीलियम हो जाएगा वहाँ पे। तो जहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है इंटेस्टाइन और जहाँ पे सीलिया मूव करने में हेल्प कर रही है वो फेलोपियन ट्यूब हो गए फीमेल में, ठीक है। आपकी बॉडी का जो विंड पाइप है, जो ट्रैकिया है, वो हो गया, ब्रोंकाई हो गया। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस आपकी स्किन में, माउथ में, वजाइना में, ठीक है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ड्राई होने से बचा रहा है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल स्वेट ग्लैंड्स में है, वाटर और आयंस के सिक्रीशन में इन्वॉल्व है। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, ओके, एपिडिडमिस जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। मेमरी ग्लैंड, ब्रेस्ट, लैरिंक्स आपका वॉइस बॉक्स, okay, so this is the location. So we will quickly revise functions of epithelial tissue. डिफेंस में प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपकी बॉडी को, है ना। माइक्रोब्स आपकी स्किन पे, आपने देखा होगा कभी मॉस्किटो बैठता है तो वो एंटर नहीं करता, क्यों नहीं करता? क्योंकि आपकी बॉडी को एपिथेलियल टिश्यू, स्किन जो है इट इज़ मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू जो प्रोटेक्ट कर रही है, तो इसका रोल हो गया डिफेंस में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टमक में एसिड सिक्रीट होता है ना HCl, और सिक्रीशन में क्यूबॉइडल एपिथीलियम। एब्जॉर्प्शन कॉलमनर एपिथीलियम आएगा यहाँ पे जो इंटेस्टाइन में है। रिमूव वेस्ट एंड स्वेट एंड स्किन, है ना। तो ये था बेटा आपका, और नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।